Hello everyone. I welcome you all in today's class of plasma physics. So, we have covered some topics in plasma so far, but let us revise that key points of plasma. So, what is plasma? It's considered as a fourth state of matter after the solid, liquid, and gas, which are well known. Plasma is considered as the fourth state of matter. So, as you increase the heat, then one type of state can be converted into another, and plasma exists at very high temperatures. So in the plasma we have electrons and ions, but electrons are no longer bound to the nucleus and they are free. So they have all the electrons and ions or in the plasma have the Coulomb interactions, and also they behave as a fluid, and also there is a collective behavior. So sometimes plasma can be considered as a ionized gas, but it's not the complete definition of plasma. For an ionized gas to be a plasma, there should be two conditions. One is quasi neutrality, means the plasma is not completely neutral. The number of electrons and ions are not exactly equal but approximately equal. And second thing is collective behavior. In the plasma, we also discussed Debye shielding, that how plasma screens any external electric field. Then after that we started fluid model of plasma. We used analogous fluid equation, Navier-Stokes equation, which we know in the fluid. So we can use fluid dynamics or the fluid equation in the plasma to understand the plasma dynamics, as both are quite similar. After that we discussed plasma oscillations, the concept of phase velocity and group velocity, the dispersion relations, and there are two types of plasma waves. First we discussed plasma oscillations, and then we discussed how plasma oscillations are different with the plasma waves, because plasma oscillations cannot propagate unless there is a thermal motion. So this you can see here plot between it's a dispersion graph between omega and k, and it is showing that omega depends on k such that there is a phase velocity you can define as omega upon k, as well as group velocity d omega upon dk. So this is for electron. Then we discussed similar waves for ion, which is called ion waves or ion acoustic waves. So here you can see the two graphs between dispersion plots of electrons and ions. And for electrons at low k, means when k is very low, we have constant frequency. So these are called constant frequency wave, and at when k is very high, then it is constant velocity. And in ion it's just opposite. At low k it's constant velocity, but at high k it is constant frequency waves. So far we discussed these things. Now let us start discussing electrostatic electron waves perpendicular to a magnetic field. So as you can see, now we are going to discuss this thing. So far we discussed when there is no magnetic field. So here this b was 0 so far. Okay, there was no magnetic field, external magnetic field, and let us write it b naught. Okay, we will always write external magnetic field as b naught, and we will also define some other terms for better distinction, that
now we have a plasma wave with some characteristic like k. We have a wave number of k of a wave, and also we have its electric vector, let us write it E1, and its magnetic field vector, let us write it B1. So B1 will define for the wave and B0 is the for external magnetic field. Okay, so we will define some terms like when k is parallel to B0, okay, then we will term it as parallel wave. And also when k is perpendicular to B0, then it is perpendicular wave. Okay, similar to that, when k is parallel to E1, okay, now these both are for the wave, ये वेव के ही दो पैरामीटर्स हैं, तो इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है, एंड सिमिलर परपेंडिकुलर ये हो जाएगा ट्रांसवर्स वेव। इसके बाद हम देखते हैं एक और पॉसिबिलिटी है कि व्हेन देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड, B1 0 है, किसका, उस वेव का, प्लाज्मा वेव का, देन बट B0 हो सकता है उस समय पर, B0 की पॉसिबिलिटी है कि वो हो भी सकता है। तो B1 0 जब होगा तो हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलेंगे, ठीक है, ओनली इलेक्ट्रिक वेक्टर इज प्रेजेंट। और B1 जब नॉन ज़ीरो होगा देन वी विल से दैट वी हैव अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ ये सब हो सकती हैं, हम सबको वन बाय वन कंसिडर करेंगे, दैट डिफरेंट टाइप ऑफ प्लाज्मा वेव्स इन द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी हम राइट नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रॉन वेव्स, आयन भी पढ़ेंगे, परपेंडिकुलर टू B0, ठीक है। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को भी पढ़ लेंगे, इन दी एब्सेंस भी पढ़ सकते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो देयर कैन बी मैनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। तो लेट अस स्टार्ट कि अब हम कैसे इसको लिखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, मैं लिखता हूँ मैक्सवेल की इक्वेशन, डेल क्रॉस E1 इज इक्वल टू माइनस B1 डॉट, ठीक है, ये शायद थर्ड इक्वेशन है, आपको पता है जो फैराडे लॉ होता है, तो ये लिख दिया हमने, इट इज़ ओके। अब इसको अगर मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली k क्रॉस E1 ओमेगा B1, ये लिखा जा सकता है। अब कैसे लिखा जा सकता है, अब देखिए इक्वेशन नंबर मैं दे रहा हूँ 28, बिकॉज दिस वीडियो इज़ फॉर our students of masters third sem MSc third sem physics of SSG University, so they know that मतलब मैं उसी नंबरिंग में कर रहा हूँ जिस नंबरिंग में हमारी क्लासेस हुई थी ऑफलाइन, जो भी हमने क्लास मोड में करी हैं फिजिकली, उसमें क्योंकि नंबरिंग का इक्वेशन का मैं चेंज नहीं कर रहा, तो 28 उससे फिर हौच पौच हो जाएगा। सो 28 नंबर आप देख लीजिएगा अपने नोट्स में, इससे पहले तक 27 था जब हमने आयन वेव्स पढ़ा था। ओके, अब ये 28 तक कहाँ से पहुँचेंगे आप, इसके लिए क्या करना है, इस वाले से इस वाले कहाँ से पहुँचे, इसके लिए आप क्या करना, अपने आप से करना है इसको, ठीक है। आप ये करिएगा, ई को ले लेना E1 e टू द पावर I kx माइनस ओमेगा टी, kx नहीं मतलब इसको जनरल लीजिए, तो ये आता है k डॉट r, ले लेना ऐसे k डॉट r, ठीक है। इसके बाद B1 को आप लिख लीजिए B1 e टू द पावर I k डॉट r माइनस ओमेगा टी, ठीक है। इसके बाद डेल क्रॉस E1 लिखिए, निकालिए इसको, और आप देखेंगे कि क्या ये ऐसा आता है,
ए क्रॉस E1 इक्वल टू ओमेगा B1, ठीक है, दिस इज़ फॉर योर होमवर्क। ऐसा ही आएगा। इससे हम क्या डिफ़ाइन करना चाहते हैं कि जब हमारा के, ये दोनों केस डिफ़ाइन हो सकते हैं यहाँ पे। व्हेन के इज़ पैरेलल टू E1 तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, सो B1 इज़ ज़ीरो। सो इट मीन्स कि k is parallel to E1 implies B1 equal to 0 from this equation। B1 equal to 0 मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक वेव है, तो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक वेव हमेशा लॉन्गिट्यूडनल होगी, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल से हम चले, लॉन्गिट्यूडनल का ये कंडीशन लिया और इससे हमें ये पता चल गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है ऑलवेज। अब दूसरा अगर हम देखते हैं ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही आएगी हमेशा। के इज़ परपेंडिकुलर टू E1, इसका मतलब इस इक्वेशन से आप देख सकते हैं B1 नॉन जीरो आएगा कुछ ना कुछ, देयर वुड बी सम वैल्यू, सो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। आज जो कर रहे हैं उसमें क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रॉन वेव परपेंडिकुलर टू B0। तो B1 तो है नहीं हमारे पास, ठीक है, ये वाला केस चल रहा है जहाँ पे हमारे पास B1 नहीं है आज हमारे पास सिर्फ उस वेव में एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, और एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। तो कुछ ऐसा बन रहा है हमारा, ऐसा कुछ हम बना सकते हैं कि इफ़ z डायरेक्शन एंड x डायरेक्शन अगर मैं दिखा रहा हूँ, देन z डायरेक्शन में B0 है, ठीक है, और x डायरेक्शन में क्या होता होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से, उसके अगर मैं वेव फ्रंट्स को अगर प्लॉट करूँ तो ऐसा कुछ दिखा सकता हूँ मैं, दैट k एज वेल एज E1 इन दिस डायरेक्शन, ठीक है ना। k is parallel to E1, so k and E1 both are in same direction and perpendicular to B0। तो y कंपोनेंट अभी नहीं है, ठीक है, हमने कुछ भी दो ले सकते हैं, हमने दो अभी x और z ले लिया। सो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, पहले तो हम क्या एजम्पशन ले रहे हैं, देयर विल बी सम एजम्पशंस। एजम्पशंस क्या हैं, एजम्पशंस लाइक वी ऑलवेज यूज टू हैव सम एजम्पशंस फॉर सम डेरिवेशन। तो पहला एजम्पशन है कि फिक्स्ड आयन, जो हम पहले भी ले चुके हैं, बिकॉज आयंस तो आर वेरी मच हाई हैवियर देन इलेक्ट्रॉन्स, तो हम ये मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करेंगे, दे आर मोबाइल ओनली। सेकेंड थिंग इज नो थर्मल मोशन, एंड थर्ड इज N0 B0, जो ये अनपर्टर्ब्ड हैं, अनपर्टर्ब्ड वाले, ठीक है, ये ज़ीरो है। अब लेके चलते हैं कि हमने पढ़ा है इक्वेशन, ठीक है, फ्लूइड इक्वेशन या प्लाज्मा की जो इक्वेशन है उसको कैसे लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो उसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप देखिएगा, m del v E1, ठीक है, E1 लिख दिया मैंने इसको। वन वाला ज़ीरो वाला पार्ट बताता है अनपर्टर्ब्ड को, वन वाला पर्टर्ब्ड को, पर्टर्बेशन प्रेजेंट है, ई है फॉर इलेक्ट्रॉन, ये जो सबस्क्रिप्ट्स हैं। तो अपॉन डेल टी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस E1 प्लस VE1 क्रॉस B0। वेक्टर का ध्यान रखेंगे, और इसको मैं लिखता हूँ 29, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, डेल एन E1 अपॉन डेल टी इज इक्वल टू प्लस सॉरी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से आ रहा है, एन नॉट डेल डॉट VE1 इज इक्वल टू 0, 30, एज वेल एज एक थर्ड इक्वेशन जो पॉइसन इक्वेशन हम लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट डेल डॉट E1 इज इक्वल टू माइनस EN/E1, ये 31 है। ये पुराने, अगर आप पीछे जाएंगे रिवीजन करेंगे, जो आप भूल चुके होंगे अब तक, आई एम श्योर,
तो ये इक्वेशन, ये तीनों इक्वेशन हम जिस तरह निकालते थे आप देखिएगा 8, 9 और 10 के जैसे ही हैं। ये इक्वेशन 8, 9, 10 हमने पढ़े हैं, वहाँ कैसे करते थे आपको याद आ जाएगा, कैसे हमने पॉइसन इक्वेशन, कैसे मेन फ्लूइड इक्वेशन और ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से लिखते हैं। ठीक है, हाँ तो अब इसके आगे अब हमारे पास क्या क्या है कंडीशन देखिए, के एक्स के जेड ये भी और ई वाई और ई जेड भी, ये सब ज़ीरो हैं। और मैं लिख सकता हूँ के को के एक्स लिख सकता हूँ ऐसा, और ई को मैं लिख सकता हूँ ई एक्स। ठीक है, बोथ आर इन एक्स डायरेक्शन। इसके बाद अब इक्वेशन 29 को मैं एक्स वाई और जेड कंपोनेंट में लिख रहा हूँ। ठीक है, इक्वेशन 29 आप देखते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, देन इट विल बी क्लियर, इट विल नॉट बी डिफिकल्ट। जस्ट लाइक वी डिड अर्लियर, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि बहुत लॉन्ग हो जाएगा आपको, लेकिन ये करना पड़ेगा। अगर ये आता है ये क्वेश्चन तो सेपरेटली आपको ये पूरे स्टेप पहले की तरह करने पड़ेंगे जो स्टेप्स मैंने बताए हैं पहले। अभी मैं लिखता हूँ, जैसे इक्वेशन 11 करी थी हमने, उस इक्वेशन 11 की तरह मैं लिख देता हूँ इसके तीनों कंपोनेंट्स। तो एक कंपोनेंट आएगा माइनस आई ओमेगा एम वी एक्स, एक्स कंपोनेंट, यहाँ पे आएगा माइनस ई वी वाई हो जाएगा, यहाँ पे वी क्रॉस बी जो बनता है ये आएगा। दूसरा आ जाएगा माइनस आई ओमेगा एम वी वाई इज इक्वल टू माइनस ये प्लस हो जाएगा तो ई वी एक्स बी नॉट, और तीसरे में z में ज़ीरो ही आएगा तो माइनस आई ओमेगा एम वी जेड इक्वल टू ज़ीरो। तो मैं इसको लिखता हूँ 32 एंड 33। तो हमारे दो ही काम की इक्वेशन आई हैं। ये क्या है, सिमिलर टू इक्वेशन 11 को देखेंगे आप लोग। ओके, अब 33 से मैं क्या करता हूँ, इस 33 से इससे इक्वेशन से मैं क्या लिखता हूँ, वी वाई को लिख देता हूँ मैं आई ई वी एक्स बी नॉट अपॉन एम ओमेगा। ठीक है, ये लिख सकता हूँ मैं, आई से कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई किया है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, और इसको 32 में रख देते हैं, सब्स्टिट्यूट इन 32। तो हमको क्या मिलता है, इस वाली इक्वेशन से अब लिखता हूँ मैं, यहाँ पे रख देंगे इसको। ठीक है, सो वी गेट, पहले तो सारे माइनस हैं, इनको मैं कैंसिल करके प्लस कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आई ओमेगा एम वी एक्स इज इक्वल टू ई इंटू कैपिटल ई प्लस ई, अब यहाँ पे वी वाई को मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, ये हो गया वी वाई, और बी नॉट भी आ गया है बाहर से। तो इसको क्या सिंप्लीफाई करना है थोड़ा सा, देखिए अब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा ई इंटू ई प्लस, ये क्या बनता है आई ई स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर वी एक्स अपॉन एम ओमेगा, यहाँ है आई ओमेगा एम वी एक्स। ठीक है, या मैं इस वी एक्स और वी एक्स वालों को साथ में ले आता हूँ, तो ये क्या लिख सकते हैं हम, वी एक्स आई एम ओमेगा, ठीक है ये वाला, माइनस आई ई स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर अपॉन एम ओमेगा इक्वल टू ई इंटू ई, या मैं इस पूरे को भी और बाहर ले लेता हूँ, तो इस पूरे को भी और कॉमन ले लेते हैं, देन व्हाट वी विल गेट आई एम ओमेगा वी एक्स 1 माइनस ई स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ई इंटू ई। अब देखिए आपको पता है ये ई बी अपॉन एम ये होता है साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी। साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी हमने पढ़ा था, ओमेगा सी इज इक्वल टू ई बी नॉट अपॉन एम, ये पढ़ा था साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी।
तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आई एम ओमेगा वी एक्स 1 माइनस ओमेगा सी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, और वी एक्स को मैं लिख सकता हूँ ई अपॉन आई ओमेगा एम 1 माइनस, ठीक है। ये एक रिजल्ट है हमारे पास, इसको 34 मैं इक्वेशन दे रहा हूँ। अब हमारे पास क्या है, अब हमने अभी तो इक्वेशन 11 की तरह किया था 29 को, ठीक है। अब 30 और 31 को भी हम 12 और 13 की तरह लिखता हूँ। तो इक्वेशन 30 क्या देती है आपको, इक्वेशन 30 जो आपको देता है सिमिलर टू इक्वेशन 12, आपको मिलेगा n1 इक्वल टू k अपॉन ओमेगा n0 vx, या vx को भी यहाँ पे अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ k अपॉन ओमेगा n0, ये vx की वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड लिख देते हैं। तो ये आता है ई अपॉन आई ओमेगा एम अपॉन 1 माइनस ओमेगा सी स्क्वायर ओवर ओमेगा स्क्वायर, ये पूरा ही आ गया 35, ठीक है। इसके बाद इक्वेशन 31 क्या देता है आपको, सिमिलर टू 12, हाँ ये और ये 13, इनको देख लीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। आई के एप्सिलॉन नॉट ई इक्वल टू माइनस आई माइनस ई n1, ये देता है आपको, ठीक है, सिमिलर टू इक्वेशन 13। यहाँ से n1 की वैल्यू को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आई के एप्सिलॉन नॉट ई इक्वल टू माइनस ई, ये वाली वैल्यू, तो ये आ जाएगा के अपॉन ओमेगा n0 ई अपॉन आई ओमेगा एम, ये पूरा ही आ गया। अब देखिए क्या कैंसिल आउट होता है, के और के कैंसिल आउट होता है। इसके बाद इसको लिख सकते हैं, ये इसको ले आते हैं इधर, ठीक है, तो ये वाले को यहाँ ले जाते हैं, तो ये हम बनता है 1 माइनस ओमेगा सी स्क्वायर ओवर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर n0 ओवर ओमेगा स्क्वायर एम एप्सिलॉन नॉट। और फिर से आप देख रहे हैं कि ओमेगा पी आ रहा है कहीं पे, ई स्क्वायर n0 एप्सिलॉन नॉट एम, ये वाला, तो ये लिख सकते हैं हम ओमेगा पी स्क्वायर ओवर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसको 36 लिखते हैं, और मैं लिख सकता हूँ, अब इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा सी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा पी स्क्वायर, या ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा पी स्क्वायर प्लस ओमेगा सी स्क्वायर। दिस इज़ द डिस्पर्जन रिलेशन, ठीक है, ये हमारा डिस्पर्जन रिलेशन आ गया। दिस इज़ 37। अब आप देखते हैं यहाँ पे जो ओमेगा आ रहा है टोटल, दिस इज़ द सम ऑफ ए स्क्वायर ऑफ ओमेगा पी प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी और साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, तो इसलिए इसको हाइब्रिड बोलते हैं, ये हाइब्रिड हो गया। सो दिस इज समटाइम्स कॉल्ड ओमेगा के, दिस इज अपर हाइब्रिड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अपर लोअर हम पढ़ेंगे, आयन के लिए लोअर आ जाएगा, तो ये आ गया आपके पास अपर हाइब्रिड फ्रीक्वेंसी। और यहाँ तक ही हमने अभी पढ़ना है आज के दिन कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रॉन वेव्स पढ़ लिए हमने परपेंडिकुलर टू बी नॉट। अब आगे फिर एक एक करके हम जैसे हमने डिफाइन किया था वैसे पढ़ लेंगे।